All right, now the Delhi government on Wednesday unveiled its toughest measures yet to rein in the national capital's soaring AQI under stage 4 of GRAP. As part of the stage 4 of GRAP, the Rekha Gupta government announced a ban on non-BS6 vehicles registered outside the city, denial of fuels to vehicles without valid pollution control certificates, and a mandatory work-from-home policy for 50% of employees in government and private offices. These measures, effective immediately, aim to curb the rising pollution levels and bring some relief to the capital's residents. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said that these measures target 4 major sources of pollution: vehicles, industries, dust and solid waste. In fact, this is the latest slew of measures that has been implemented by the Delhi government regarding the deteriorating air quality index in the national capital. Remember that there was a slight relief over the past 2 weeks. However, this week again, Delhiites are breathing in toxic air and the air quality index is above the dangerous mark. We also have flight cancellations that are happening due to the toxic smog and fog conditions around the Delhi airport region. And now these measures have been implemented by the Delhi government. So if there is a BS6 vehicle or below, if there is a vehicle which has a BS5 or a 4 from outside Delhi, they will not be allowed to enter the national capital region. And if you do not have a PUC, you will not be given a fuel. So this is the latest set of rules that has been coming in from the Delhi government. Joining us live on the broadcast is my colleague Aditya Vadhavan, who's joining us from the Ghazipur border. Aditya, we're seeing a new set of rules being implemented over there. Take us through the details. Well, absolutely, Shivani. If you see, now from this is the day one, this rule has been implemented that if there is no PUC, there will be no petrol. Yes, this morning we also spoke with some daily commuters, who were at the petrol stations. There was a large crowd of, the commuters taking their vehicles for pollution check because many of them were challaned and many of them were not allowed to refuel their petrol tanks because they didn't have a valid PUC certificate. So indeed, at this juncture, definitely, initially it is just it's the first day of this no PUC, no petrol, and how it needs to be seen, from here on how things unfold going forward. Because considering the fact, indeed the situation is Delhi, the air pollution is worsening across Delhi NCR, and definitely due to that, this measure has been announced by the Delhi government, and it needs to be seen by when, because now most of the cars will go go forward to take to apply for the pollution certificate, and definitely the Aditya, if you have people with you, try to speak to them about how they are looking at these new measures that are being implemented by the government, because a lot of people also seem to be inconvenienced. Well, at this juncture, indeed, there are people are facing very, very inconvenience due to that. Today also, while doing a ground report in the morning, we spoke to people, what problems were they facing, due to this due to this very first day of no PUC, no petrol. And we have with us, sir, बहुत नमस्कार, न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. अगर आप जैसे टेम्पो 8 से वो ये जो PUC, नो PUC, नो पेट्रोल का रूल आया है, कितना आप अफेक्टेड है? क्या आपका टेम्पो जो है नो आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है, और क्या BS6 के नॉर्म से मैच करता है? Oh, so indeed at this juncture, the vehicles, definitely people are facing the inconvenience, and definitely, in the times to come, we could expect further development regarding this. Yes, Shivani.
All right, Aditya, I'll request you to stay on with us. In fact, let me also go across to Ali Khan, who's joining us from the Chilla border. अली, वहाँ पर क्या हाल है? वहाँ पर लोगों ने क्या, क्योंकि अब BS6 कंप्लायंट ही गाड़ियाँ अब बॉर्डर क्रॉस कर सकती हैं, उससे बिलो जो बाहर की गाड़ियाँ हैं वो नहीं आ सकती हैं। तो आप ज़रा हमें बताएं कि वहाँ सिचुएशन क्या है, लोगों से बात करें। All right, we will try to reconnect over there with Ali. But if I can go across again to Aditya. Aditya, if there are people around you, try to speak to them about how they are looking at the PUC rule as well, because if they don't have PUC, they will not be given any fuel. That's what's happening in the national capital. There were fewer queues outside the fuel stations in the national capital region today. Well, absolutely. Indeed, definitely, there are concerns among people. In the morning when we were doing a ground report, there was one PUC center, pollution check center, where the system had crashed, and indeed at this juncture the system had crashed, and there was a long queue of people, waiting outside the petrol queues, as for getting the clearance, for getting the pollution certificate. So indeed, the first day was very, very, cloistered. It was very, very chaotic scenes were witnessed at the petrol pumps, and definitely at this juncture, indeed it needs to be seen, how things unfold in this way, because there are concerns among people, because particularly we talk about Delhi, there are all sort of people, rich, poor, living, and some people also have very old vehicles with them. So old vehicles can never be BS6 compliant. So indeed, they will face initially difficulties, and there are some people who also cannot afford buying new luxury cars which are compliant of BS6. So indeed, now from here on, it needs to be seen, how things unfold, how in actuality will this take time, to effectively implement this no PUC, no petrol rule in Delhi. Yes, Shivani. All right. Thank you so much, Aditya, for joining us on the broadcast. Meanwhile, my colleague Arzu Seth has spoken to some people who were present at the fuel stations. Let's in fact listen into what they have to say. अगर आपके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आज से दिल्ली में आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जी हाँ, आज से ये ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद के पेट्रोल पंप पर है और आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से चेकिंग जो है वो भी की जा रही है, और पहले जो उनका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही फ्यूल जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो भी किया गया है, कैमरा लगाया गया है, स्पीकर जो है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये कैमरे के जरिए जो गाड़ियां हैं उनको कैद किया जा रहा है, उनकी फोटो जो है वो लेते हैं, और इसी के साथ ही अनाउंसमेंट जो है वो भी हो जाता है। जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होता है उनको इसके टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक जो है वो किया जाता है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनको फ्यूल चाहिए, जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर दिल्ली सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मुकेश जी, आपने सर्टिफिकेट है आपके पास इस वक्त मौजूद है? हाँ जी मैम। क्या अभी बनवाया है आपने? नहीं, पहले से भी था, अब करवा रहे, फिर 2 तारीख को होना था, इससे पहले ही करवा होना था, तो आपने उसको करवा लिया है, बनवा लिया है। एक बार आप दिखाएंगे। देखिए, तो ये सर्टिफिकेट है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसको अभी इन्होंने अपग्रेड कराया है। एक्सपायर हो रहा था क्योंकि दिल्ली सरकार का ये फैसला कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? सही है मैम, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है अच्छा लिया है, बट जिस चीज़ में लेनी चाहिए तो वो चीज़ में नहीं ले रही ना गवर्नमेंट। जैसे बेजुबान हो गया, इनके लिए गलत ले रहे हैं। दारू बंद करवा दूं मैं मान जाऊंगा, गांजा बंद करवा दूं मैं मान जाऊंगा, रेप बंद करवा दूं मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये फैसला जो है वो जो प्रदूषण है उससे लड़ने मन नहीं है। सिगरेट बंद करवा दो, सबसे ज्यादा प्रदूषण ये है। लोग खुलेआम लड़कियां पी रही, छोटी छोटी बच्चे पी रही, सिगरेट पी रही, रोड में चलते हुए पी रहे, MIT के बच्चे पी रहे, क्या सीखेंगे बच्चे? गलत है। जिस चीज में वो करना चाहिए, पनवाड़ी की दुकान बंद करवा दो, सिगरेट गांजा बंद करवा दो, मैं मान जाऊंगा। तो आपको नहीं लगता ये इफेक्टिव हो सकता है? प्रदूषण नहीं हो सकता मैम,
घर में लोगों ने खाने के लिए नहीं होगा, घर में 10-10 गाड़ी है, हर किसी के पास स्कूटी है, बाइक है, स्प्लेंडर है, गरीब आदमी से पूछो ना उससे। हाँ, तो इसीलिए तो लाए हैं कि गाड़ियां हैं तो सर्टिफिकेट होगा तो प्रदूषण कम होगा। मैम नहीं होगा, और ज्यादा बढ़ेगा। मैं मान जाऊंगा प्रदूषण के लिए आप सिगरेट बंद करवा दो, गांजा बंद करवा दो, दारू बंद करवा दो, मैं मान जाऊंगा गवर्नमेंट से। प्रदूषण ऐसे नहीं रुकेगा मैम जैसे वो सोच रहे। यहाँ पर देखिए और लोग भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप। प्रदीप जी, दिल्ली सरकार की तरफ से ये जो ऑर्डर किया गया है कि अगर आपके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको फ्यूल यानी कि डीजल, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। आप कैसे देखते हैं? एक आम जनता है, आपको डेली ऑफिस जाना है, डेली तेल डलवाना है। डेली तो नहीं मैडम, वीक में एक बार तो टैंकी फुल करानी जरूरी है, लेकिन जो भी लिया है डिसीजन, ठीक डिसीजन लिया है, थोड़ा तो कंट्रोल होगा इससे पॉल्यूशन। और आपको लग रहा है जिस तरीके का हालात दिल्ली में बने हुए हैं, ऐसे मेजर्स लेना जरूरी हो गया है? थोड़ी भले दिक्कत होगी लेकिन जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है बहुत बढ़िया लिया है। आपके पास पहले से सर्टिफिकेट था? नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट तो था लेकिन अब खत्म होने वाला था तो मैंने भी रिन्यू करा लिया है। तो देखिए जो लोग हैं कहीं ना कहीं इससे अवेयरनेस पहुंची है लोगों में, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे या फिर जिनके पास थे जो एक्सपायर हो रहे थे उन्होंने भी रिन्यूअल जो है वो यहाँ पर कराया है, करवा रहे हैं। भैया आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपने अच्छा सर्टिफिकेट बन गया आपका? हाँ जी रिन्यूअल करवाया आपने? हाँ जी। अच्छा, आपको लग रहा है ये इफेक्टिव हो सकता है प्रदूषण से लड़ने के लिए? हो सकता है मैम, जरूरी है वैसे तो, ये तो करवाना तो जरूरी होता है वैसे तो। हाँ। और क्या बताएं आपको, दिक्कत तो कोई नहीं हो रही? नहीं दिक्कत तो कोई नहीं है, जो भी है करवाना तो पड़ेगा ही। हाँ। जो सरकार ने फैसला लिया है अच्छी बात है। आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जो ये सरकार ने मेजर लाए हैं, ये ऑर्डर किया है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट पॉल्यूशन का नहीं होगा यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फ्यूल नहीं मिलेगा। आप बहुत कारगर है लेकिन मैम 100% ये इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना। रिलीफ मिलेगा इससे लेकिन 100% नहीं कहेंगे, 50% कह सकते हैं। और भी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि आप केवल गाड़ियों का ही नहीं है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं उन पर भी थोड़ा सा लिमिटेशन लगनी चाहिए फिलहाल के लिए। हाँ, फिलहाल बंद किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन रोका हुआ है जी। ओके, फिर तो बहुत अच्छा पहल है। और भी चीज़ें हैं मैम, लेकिन हाँ ये अच्छा पहल है। अभी सिरसा साहब आए हुए थे, उन्होंने देखा, जमीन उतर के सारी चीज़ें कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छा पहल है मैम। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसे और भी मेजर्स जो है, स्टेप जो है वो लेने पड़ेंगे जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं उनको देखते हुए? बिल्कुल मैम, लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हाँ कंस्ट्रक्शन का काम जो बता रही है मुझे जानकारी नहीं थी, तो बंद किया हुआ है तो अच्छी बात है। और भी जैसे कि अब ईवी का ज़्यादा अगर हम उसको बढ़ावा दें तो वो एक अच्छी पहल होगी। और जो भी दिल्ली में के अंदर, दिल्ली के बॉर्डर के अंदर जो भी बाहर की गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि बता रहे हैं कि BS6 के नीचे का नहीं होना चाहिए, सो वो भी एक अच्छी पहल है, उसको भी कारगर साबित होगी वो चीज़, तो सही है मैम। आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है रिन्यूअल कराने में? हो ही रही है, प्रॉब्लम तो हो ही रही है। अगर जिसका पोल्यूशन अभी तुरंत एक ही दिन पहले ख़त्म हुआ है उसको तो प्रॉब्लम होगी, फिर उसको तुरंत करवाना, ये नहीं मिल रहा है, कहीं इमरजेंसी में कोई जाना हो रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत तो है, थोड़ी बहुत तो है, लेकिन झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो देखिए ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिल्ली के लोग जो हैं वो इस वक्त घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं एयर इमरजेंसी जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है, और ऐसे में सहयोग जो है वो लोगों को देना होगा। फिलहाल कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको दिक्कत हो रही है, उनको नहीं लग रहा है कि ये इफेक्टिव मेजर होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो पहल सरकार ने की है इससे थोड़ा फर्क जरूर देखने को मिलेगा। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स दिल्ली।